Good morning, students. In today's class, we'll take the chapter number 4 quadratic equation of class 10th mathematics. In today's class, we learn the basic concept of quadratic equation. So, let us start with our class. Class C. In 9th standard, we learn some polynomials. Yes or no? We learn some polynomials. So many polynomials we have learned in ninth class. Let us discuss it one by one. So we have a polynomial, zero polynomial. We have a polynomial, zero polynomial. Okay. So an expression which defined for zero polynomial can be written as p of x which is equal to 0. P of x which is equal to 0. Okay, it means there is an polynomial having a variable x. There is a polynomial having a variable x which is equal to 0, and that particular equation is known as zero polynomial. Here x is a variable. X is a variable, okay, which can take so many values. Okay, x is the variable. Another polynomial we have, that is a constant polynomial. That is a constant polynomial. So the equation for the constant polynomial is, second polynomial what we have, constant polynomial whose equation can be written as p of x is equal to a. P of x is equal to a, where a is any real number. A is any real number, but a is not equal to 0. A is any real number, but a is not equal to 0. Why I restrict this condition, in particular this equation? Because if a is equal to 0, then p of x is equal to what? P of x is equal to 0, which is a zero polynomial, not a constant polynomial. So for the constant polynomial, the equation is p of x is equal to a, where a is not equal to 0, and a is any real number except 0. Because if a is 0, then the given polynomial is not a constant polynomial, it is a zero polynomial. Okay, so we restrict, we imply this condition in a particular polynomial. I think this particular concept is clear to all of you. Third polynomial we have linear polynomial. Third polynomial we have linear polynomial. So class, for linear polynomial what we have, a equation can be expressed for the linear polynomial ax plus b. Ax plus b. Okay, and here a is the coefficient of x, a is the coefficient of x, and b is a constant term. B is constant, any constant, and a is the coefficient of x. A is the coefficient of x. Okay, again there is one condition, a and b both are real number. A and b both are real number, but a not equal to 0. B can be 0, but a not equal to 0, because if a is 0, then 0 into x is what? 0. 0 plus b is what? B only. So p of x equal to b is a constant polynomial, not a linear polynomial. Okay, so a must be not equal to 0, but b can be 0. We can also write this expression like p of x equal to ax only. Ax only. Okay, so this is the linear polynomial. Moving to the next polynomial, we have quadratic polynomial. Fourth polynomial we have quadratic polynomial. Quadratic polynomial, and the expression which expressed this quadratic polynomial is p of x
P is any polynomial having a variable x, okay, is equal to ax square plus bx plus c. Ax square plus bx plus c. Here a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, c is a constant term. C is any constant term. Again a, b and c, a, b and c, they all are real number except a not equal to 0, except a not equal to 0, because if a equal to 0, so this particular term diminish, only we left with these two terms bx plus c, and bx plus c is a linear polynomial, not a quadratic polynomial. So for the quadratic polynomial, a not equal to 0, b and c can be 0, b and c can be 0, b and c can be 0. Okay, I hope quadratic polynomial is clear to all of you. Then similarly we have cubic polynomial and biquadratic polynomial. Cubic polynomial we have and biquadratic polynomial. Let us discuss cubic polynomial now. The fifth one polynomial is cubic polynomial, and the expression for cubic polynomial is what? Px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. Again a is the coefficient of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of x, and d is a constant term. D is a constant term. And please class learn this particular condition as well. A, B, C, D, they all are real number, they all are real number, but a is not equal to 0. A is not equal to 0, because if a is equal to 0, then this particular term diminish and we left with only these equation bx square plus cx plus d. So this is the quadratic polynomial. This is the quadratic polynomial. I hope this thing is clear to all of you. So let us recall all the polynomial again. First is 0 polynomial, which is given by px equal to 0, px equal to 0. Another polynomial we have constant polynomial, which is px is equal to a. Then we have linear polynomial, which is written as px is equal to ax plus b. Then we have a quadratic polynomial, which is given by px is equal to ax square plus bx plus c. Then we have cubic polynomial, which is ax cube plus bx square plus cx plus d. And we have another polynomial as well, an order variable. So class C, in all this mentioned polynomial, there is a sequence. See, first is your 0 polynomial, and for 0 polynomial equation is p of x equal to 0. Now we have constant polynomial, and for the constant polynomial px is equal to a, and we superimpose one condition, a not equal to 0. Okay, because if a equal to 0, then the given polynomial becomes a 0 polynomial. Then again we have linear polynomial, in which equation is ax plus b, and here again a not equal to 0, then again a not equal to 0 in quadratic polynomial, then again a not equal to 0 in cubic polynomial. Because if a is not equal to 0, then constant polynomial become 0 polynomial, linear polynomial become constant polynomial, quadratic polynomial become linear polynomial, and cubic polynomial become quadratic polynomial. Yes or no? So therefore a is not equal to 0 in all the polynomial which is given to you. Now class C, let us talk about the degree. Let us talk about the degree or power of a polynomial. Degree or power of a polynomial. Let us talk about the new concept, degree or power of a component. So what is the degree of a polynomial? The degree of the polynomial is the highest power of x in a equation. Highest power of x. Highest power or exponent. Highest power. Power is sometimes known as exponent. Highest power of
x. So class C, in this particular linear polynomial, the highest power of x is 0 because a can be written as ax raised to the power 0 because x raised to the power 0 is 1. X raised to the power 0 is what? 1. So a into 1 is what? A only. So here we can write x raised to the power 0. Now here the degree of x is what? 0. It means for the linear polynomial the degree is 0. The linear polynomial degree is 0. For linear polynomial degree is, see, the highest power of x is what? 1. So the linear polynomial degree is 1. In quadratic polynomial, what is the highest power of x? 2. It means the degree is 2. In cubic polynomial, what is the highest power of x? 3. It means the degree is 3. Okay. So what we learn in degree of a polynomial? Let me take brush. Yes. For linear polynomial, we'll write short form LP and like this. Okay. So LP stands for linear polynomial. First is LP. Degree is what? Degree is what? 1. Degree is 1. And for constant polynomial, degree is 0. For quadratic polynomial, degree is 2. For cubic polynomial, degree is 3. I hope this thing is clear to all of you. Now class, whatever the degree of the polynomial is there, that degree defines the zeros, roots or factors of a given polynomial. What does it mean? See, if there is an equation of quadratic polynomial is given to you, there is a quadratic polynomial is given to you, so its degree is 2. It means how many zeros are there for quadratic polynomial? How many zeros? 2, because the degree is 2. If the cubic polynomial is given to you, then the degree is 3. It means how many zeros are possible for the cubic polynomial? 3. How many zeros? 3, like this. So let us take some example. Let us take some example. Wait. Let us take some example. See, if I am written f of x, if I am writing f of x is equal to minus 5x plus 2, minus 5x plus 2. So here the degree of x is what? The degree of x is what? The degree of x is 1. So this is the linear polynomial. So how many zeros are there? 1 0. How many zeros are there? Only 1 0. How to find 0 will take in another lecture. ठीक है, अभी बस हमें ये समझना है कि पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं. So this is the linear polynomial because the degree of x is 1. It means the zeros is 1. Another example, let us take f of x is equal to minus 3 upon 2x square plus 3x minus 9. So here the highest power of x is 2. It means degree of the given polynomial is 2. So the zeros possible for a polynomial is 2. Zeros of for the particular polynomial is 2. Okay. Another example, let us take f of x. There is a function having a variable x, can be written as minus 5 upon 3x cube plus 9x plus 6. 9x plus 6. Wait. 9x plus 6. So here the highest degree, the highest degree of x is equal to 3. The highest degree of x is 3. Yes or no? The highest degree of x is 3. It means how many zeros are there? 3 zeros we have for a cubic polynomial. 3 zeros we have for a given polynomial, for a cubic polynomial. Okay, let us recall it again. For linear polynomial example, we have 3x plus 2 is a linear polynomial. Okay, and minus 3x if we are writing minus 3x, and if we are writing minus 3x, so minus 3x is also a linear polynomial because the highest degree is 1. As I told you, any linear polynomial can be written as ax plus b. B can be 0 but a cannot be 0. So see, minus 3x
if it is given to you, so we can write it like minus 3x plus 0. So the value of b is 0, but the value of a is minus 3. Okay. And class C, polynomial, the polynomials is always a degree of positive natural numbers. जितने भी पॉलिनोमियल्स हम देखेंगे, अगर उनके वेरिएबल x की या फिर हम जो भी वेरिएबल उस पर्टिकुलर इक्वेशन का ले रहे हैं, उस पॉलिनोमियल का ले रहे हैं, अगर उसकी पावर एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर है लाइक 1 2 3 4 5, तो ही वो एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल आपका नहीं होगा. ओके, पॉलिनोमियल इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉजिटिव नेचुरल नंबर डिग्रीज. क्लियर दिस थिंग? नाउ our chapter is quadratic equation. Our chapter is quadratic equation. Now start with a quadratic equation. Quadratic equation. Class C, we have a function f having a variable x which is written as ax square plus bx plus c. Now you are able to give me the answer which type of polynomial is given to you. It is a quadratic polynomial. Why so? Because its degree is 2, because the degree of x is 2. The highest power of x variable is 2. When we equate a given polynomial, this is the polynomial, this is the polynomial. When we equate a given polynomial with a 0, when we equate a given polynomial with a 0, what does it mean? If f of x, which is a quadratic polynomial, is equal to 0, then the given expression is said to be quadratic equation. Then the given expression is said to be quadratic equation. So what is the definition of a quadratic equation? Any quadratic equation, any quadratic equation if p of x is a quadratic polynomial, then p of x is equal to 0 is called a quadratic equation, is called a quadratic equation. I hope this thing is clear to all of you. Here equation can be written as p of x is equal to ax square plus bx plus c equal to 0. A, B, C are the real number, but a not equal to 0, because if a equal to 0, then the quadratic equation becomes the linear equation, bx plus c equal to 0 only. Okay, so let us take some example. How will you come across when there are so many equations given to you and we have to find out what are the quadratic equation? So let us take examples. Let us take the examples. Wait. Now see class, I am giving you one example. X square plus 1 upon x square is equal to 2. X square plus 1 upon x square is equal to 2. Now you please tell me, it is a quadratic equation or not? It is the quadratic equation or not? Class C, the given equation can be represented in the form ax square plus bx plus c
इक्वल टू 0। जो इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगी, हमने पढ़ा है, वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर अभी हाल फिलहाल की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिख रही, क्योंकि इसके सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर आ रहा है। और अगर मैं 1/x² को देखता हूँ तो 1/x² किसके इक्वल होता है, x⁻⁻² के। और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर x की पावर नेगेटिव इंटीजर है तो वो तो आपकी पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है, और अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो सर पहले वाली जो टर्म है उसमें तो डिग्री 2 है, तो वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि वो एक पॉजिटिव नेचुरल नंबर पावर है। वो भी ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखते हैं। कैसा लिखेंगे, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, x²। एलसीएम क्या आएगा, x²। अब इस पर्टिकुलर गिवन एग्जाम्पल में इस फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, 1 और x² का एलसीएम क्या होता है, x² होता है। यस और नो। नाउ ये x² किधर जाएगा, इधर, बिकॉज मुझे डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने हैं, तो 1 को मेरे को x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। तो ऊपर भी मुझे सेम चेंज करने पड़ेंगे, x² को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x² से। तो x² इंटू x², x⁻⁴ प्लस 1, बिकॉज ये वाला 1 तो चल ही रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 2। अब मैं ये x² इधर ले जाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या बन जाएगा, x⁻⁴ प्लस 1 इक्वल टू 2x²। ठीक है, अब ये 2x² वाली टर्म में अगर यहाँ लेके आऊँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x⁻⁴ माइनस 2x² प्लस 1। अब ये आपकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4, और जब हाईएस्ट पावर 4 होती है तो वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है, वो आपकी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हैविंग अ पावर 4। सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विच इज गिवन टू यू इज नॉट अ quadratic equation. I hope this thing is clear to all of you. Okay, let us take one more example so that this particular quadratic equation will become more clear to all of you. Yes, another example we have x plus 3/x, x plus 3/x is equal to x²। अब अगेन आप कहोगे सर अगर हम राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पे तो x की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन बेटा मेरे ने आपको क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमेशा क्या होती है, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। अब मैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एलसीएम लूँगा। अगर एलसीएम लूँगा तो ये वाला x इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस में क्या चल रहा है, 3 इज इक्वल टू x²। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो ये x इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू x², x³। अब इसको और मोर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट x³, ये x² इधर लेके जाएंगे तो माइनस x², ये प्लस 3 उधर लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड में तो माइनस 3 इक्वल टू व्हाट, 0। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है x की, 3, तो क्या ये क्वाड्रेटिक है, नहीं है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा आपका। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो इन एग्जाम इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम देन यू आर एबल टू सॉल्व, यस और नो। हमें इक्वेशन को हमेशा सिंप्लीफाइड जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द अदर टॉपिक एंड इन अदर टॉपिक विल सी, वेट, सी, this is all about the introduction what we have done. Let us read it. A polynomial whose degree is 2 is called a quadratic polynomial. It is in the form p of x equal to 0. मैंने आपको बताया था a कभी भी 0 नहीं होगा। quadratic equation में क्या होता है, when we equate the quadratic polynomial to 0 then it is called a quadratic equation. If and only if px equal to 0 then it is known as quadratic equation and standard form is written by this equation, ax² plus bx plus c equal to 0, where a, b, c are the real number and a is not equal to 0. I hope this thing is clear to all of you. Now next is roots of a quadratic equation. Roots of a quadratic equation. So class, as I told you
every equation, every polynomial having their roots which is given by, which will represent by its degree. If degree is 1, then there is one root. If degree is 2, then 2 roots are possible. If degree is 3, then 3 roots are possible. So in quadratic equation the degree is 2, so how many roots are possible? 2 roots are पॉसिबल. अब हम बात करते हैं कि ये रूट्स होते क्या हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये रूट्स होते क्या हैं. तो अपन इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम एक. एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ये आपके पास एक एग्जाम्पल है. एक्स स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये एक सिंप्लीफाइड, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन है. ठीक है ना. और अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0. यस और नो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब कंपेयर भी करते हैं, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1. ठीक है ना. जब कोई भी आपको एक नंबर शो नहीं हो रहा है किसी कोफिशिएंट के साथ, तो वहाँ पे आप मान लेना कि उस कोफिशिएंट के साथ आपका नंबर कौन सा है? 1. तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है आपका? 1, यानी कि ए की वैल्यू क्या है मेरी? 1. इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी. तो इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? +6. साइन आर ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन. अगर माइनस होता तो हम लेते बी की वैल्यू -6. यहाँ पे क्या है? बी की वैल्यू +6. सो द कोफिशिएंट ऑफ बी इज 6. ओके, नाउ अनदर कांस्टेंट टर्म वी हैव सी. कांस्टेंट टर्म वी हैव सी. और अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? 5. तो सी की वैल्यू क्या है? 5. ठीक है, साइन आर ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके रूट्स भी कितने होंगे? 2 होंगे. कितने रूट्स होंगे? 2. अब बेटा रूट्स को फाइंड करने के ना अपने पास 2 मेथड हैं. पहले 3 मेथड हुआ करते थे, लेकिन अभी सीबीएसई ने 2 मेथड कर दिए हैं. लास्ट ईयर तक हमारे पास 3 मेथड थे. लेट अस गिव यू द नेम ऑफ दैट मेथड. फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप 8th क्लास से करते हुए आ रहे हो, जिसमें अपन स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं. फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड. सेकेंड मेथड भी है जो आप कोर्स में नहीं है, वो कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. लेकिन ये अपने कोर्स से हट चुका है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे. लास्ट ईयर ये कोर्स से हटा है. अभी आपके जो सीनियर्स ने एग्ज़ाम दिया है उनके कोर्स में ये टॉपिक नहीं था. ठीक है. थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है आपका क्वाड्रेटिक मेथड. क्वाड्रेटिक मेथड समटाइम्स, और पहले के टाइम में उसको अपन आज से 4-5 साल पहले हम किस नाम से बोलते हैं? श्रीधराचार्य मेथड. श्रीधराचार्य मेथड. ठीक है, तो हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक मेथड. मतलब ये 2 मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए. कितने मेथड हैं अपने पास? 2 मेथड हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करने के लिए. तो आज अपन डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड. ओके, फैक्टराइजेशन मेथड. So again I am writing my example and will find its root by using the factorization method. The example is x square plus 6x plus 5 equal to 0. Now here degree is 2, so 2 roots are possible. और वो roots कौन कौन से होंगे? Let us take alpha and beta. Again I am writing alpha and beta. These are the 2 roots of a quadratic equation. Roots of a quadratic equation. और ये roots हम कौन से मेथड से फाइंड करेंगे? अभी फैक्टराइजेशन मेथड और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड. और ये मेथड हम 9th में भी पढ़े हैं और 8th में भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसमें होता क्या है? हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. मिडल टर्म को स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में. कितने फैक्टर्स में? 2 फैक्टर्स में, जिनका सम और डिफरेंस तो क्या आना चाहिए? +6. प्लीज़ लर्न दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है 6x. हमें जो 2 टर्म फाइंड करने हैं उन दोनों टर्म का सम और डिफरेंस तो +6x ही आना चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 5 × x² इज 5x². उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 5x². यस और नो? अगेन आई एम टेलिंग यू 6x हमारी एक मिडल टर्म है. हमें इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है 2 फैक्टर्स में.
हम जब इन दो फैक्टर्स को फाइंड करेंगे तो हमें ये कंडीशन माइंड में रखनी है कि उन दोनों का सम और डिफरेंस 6 होना चाहिए, 6x होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जो आउटर मोस्ट और एंड लास्ट मोस्ट टर्म है x² और 5 उनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो अगर मैं 6x की बात करता हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4x + 2x, 4x + 2x, क्योंकि आपको क्या पता है कि 4x + 2x 6x होता है ना, 4x + 2x 6x होता है। लेकिन मैं 4x और 2x को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या आएगा, 8x², 4 × 2 8, x × x x², तो 8x²। मुझे क्या चाहिए, 5x², तो ये वाले फैक्टर्स तो पॉसिबल है नहीं। अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7x - x, क्योंकि 7x - x भी 6x होता है। लेकिन बेटा 7x - x तो 6x होता है, वो बात तो ठीक है कि उनका सम 6x आ गया, उनका डिफरेंस 6x आ गया। लेकिन 7x और x को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पे 7x² आता है। मुझे क्या चाहिए, 5x²। यस और नो? तो मेरे कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं, 5 and 1, बिकॉज 5 × 1 अगर मैं ये लिखता हूँ 5x + x, तो 5x + x क्या होता है, 6x, और 5x × x क्या होता है, 5x × x क्या होता है, 5x², 5x²। सो हाई होप आपको इसमें क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। हमें 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं, अभी मैं 1-2 एग्जांपल्स और लूँगा तो आपको ये टॉपिक और क्लियर होगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे आपके पास फैक्टर्स क्रिएट होंगे जिनका सम और डिफरेंस तो मिडल टर्म के इक्वल बन रहा है, लेकिन उनका प्रोडक्ट आउटर मोस्ट टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल नहीं बनेगा। तो हमें वो देखना है कि ऐसे 2 फैक्टर कौन से हैं जिनका सम और डिफरेंस तो मिडल टर्म के इक्वल है और उनका प्रोडक्ट भी मिडल टर्म के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, मैं वापस इसको रब करके वापस इक्वेशन लिखता हूँ। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, x² + 6x + 5 = 0, x² + 6x + 5 = 0। अब मैंने क्या बताया, 2 फैक्टर कौन से हो जाएंगे, x² + 5x + x + एक 5 तो अपने पास अभी चल ही रहा है जो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो 6x को मैंने 5x और x की में स्प्लिट कर दिया, इन दोनों का सम होगा 6x, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 5x²। अब देखो ये 2 जो टर्म्स हैं और लास्ट की जो 2 टर्म है, इनमें से अब हम कॉमन लेंगे। अब देखो x² और 5x में कॉमन क्या है, x, क्योंकि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिंगल x है, तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं ना। हम लीस्ट चीज़ें कॉमन ले लेते हैं। तो अपने पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, इन दोनों टर्म में, इधर एक x कॉमन ले लिया, x बचेगा, इधर प्लस है ही, और इस 5x में से x कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। अब इधर आपका प्लस साइन चल रहा है तो इधर प्लस लगा दो। अब देखो x और 5 जो लास्ट की 2 टर्म है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें एक फैक्टर तो कॉमन है, वो क्या है आपका 1, ठीक है ना। तो 1 तो सबका 1 तो एक ऐसा फैक्टर है जो सबका फैक्टर होता ही है, ठीक है ना। तो x + 5 में से हमने 1 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में क्या बचा, अगेन x + 5 = 0। क्लास C, एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको पता कैसे चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो हम ठीक कर भी रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करोगे तो कॉमन लेने के बाद पहली 2 टर्म के और लास्ट के 2 टर्म के, फिर जो ब्रैकेट में एलिमेंट्स बचेंगे, जो ब्रैकेट में आपकी टर्म्स बचेंगी, वो हमेशा सेम होती हैं। अगर वो सेम नहीं है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रखी है, ठीक है ना। ये हमेशा सेम होगा, x + 5, x + 5। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x + 5, क्योंकि x + 5 एक ऐसी ब्रैकेट है जो दोनों टर्म्स में आ रही है, पहली वाली टर्म में भी आ रही है और दूसरे टर्म में भी आ रही है। अब अनदर ब्रैकेट हम क्रिएट करेंगे और उसमें हम क्या लिखेंगे, वो सारी चीज़ें जो कॉमन नहीं थी। तो क्या क्या कॉमन नहीं था, x कॉमन नहीं था और इधर +1 कॉमन नहीं था। तो x + 5, x + 1 = 0, ठीक है। ये आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में ब्रैकेट्स आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनको =0 करेंगे। जब मैं x + 5 को =0 करूँगा तो क्या आएगा, x की वैल्यू -5, और जब मैं x + 1 को =0 करूँगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा मान लेता हूँ। तो मेरे 2 रूट्स कौन से हो गए, -5 और सेकेंड रूट कौन सा हो गया, -1, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई हैं। दीज आर द पॉसिबल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, पॉसिबल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब बच्चे पूछते हैं सर ये पॉसिबल रूट्स जो हमने निकाले हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये रूट्स हमने सही भी निकाले हैं गलत निकाले हैं। पहली बात तो हमें अपने स्टेप्स ही करेक्ट रखने हैं।
फिर भी अगर आपको जस्टिफाई करना है कि आपके रूट्स जो से निकले हैं वो सही हैं गलत हैं, तो बेटा ये क्या है, -5 और -1 ये x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। अब हम इसको 1 बाय 1 x वेरिएबल के से रिप्लेस कर देते हैं अपनी पर्टिकुलर इक्वेशन में, और रिप्लेस करने के बाद अगर हम सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाता है, मतलब राइट हैंड साइड में 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी अगर 0 हो जाती है तो 0 इक्वल टू 0, इट मीन्स आपके जो रूट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, आपने बिल्कुल सही किया है, ठीक है ना। तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आप ये लर्न रखना, इक्वेशन क्या है, x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, रूट्स कौन कौन से हैं, -5 कॉमा -1। तो मैं इसको वापस इरेज करके वापस स्टार्ट करता हूँ। यस, मेरे पास क्या थी इक्वेशन, वेट 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 वेट, मेरे पास इक्वेशन थी, ओहो ब्रश प्लीज़ कम, यस इक्वेशन थी x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, और मेरी अल्फ़ा की वैल्यू तो क्या आई थी, -1, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, -5। मतलब अब मैं इस इक्वेशन में x की जगह क्या लिखूँगा, -1, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, -1, x की जगह -1 उसका स्क्वायर, प्लस में 6, इधर x की जगह क्या आ जाएगा, -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। अब देखो ये +6 है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 6, और साथ में क्या चल रहा है, +5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब 1 - 6 क्या होगा, -5, क्योंकि 1 - 6 का मतलब क्या है, हमें 1 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब 6 बड़ा है तो 6 के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस आएगा, प्लस में 5। अब -5 प्लस 5 क्या होता है, 0, 0 इज इक्वल टू 0, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। यानी कि जो आपने रूट्स निकाले ना, ये रूट सही है, और अगर पहला रूट सही है ना तो ये ऑटोमेटिकली सही ही आएगा। इसको आप चेक कर सकते हो बाय द सेम मेथड, बाय द सेम मेथड। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हम रूट्स कैसे फाइंड करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास। इसको ये एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है, 2 और 3 मार्क्स का, अगर थोड़ी इक्वेशन वो और क्रूशियल बना देता है तो, ठीक है ना। उसको क्या है, पहले हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, तो वो 3 मार्क्स में भी जाता है। तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म या फिर फैक्टराइजेशन मेथड की काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। आई होप काफ़ियों को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अपन एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक अपना बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्लियर हो जाएगा, फिर हम कल करेंगे कौन सा मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक मेथड। Let us take another example to clear this concept more. Let us take one example, 9x square minus 3x minus 2 equal to 0, ठीक है। अब मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं। अब आपको एग्जामिनर रूट भी बोल सकता है, फैक्टर भी बोल सकता है और ज़ीरो भी बोल सकता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं मिडिल टर्म की बात करता हूँ तो मेरी मिडिल टर्म क्या है, -3x, यानी कि मुझे ऐसे 2 फैक्टर फाइंड करने हैं जिनका सम और डिफरेंस क्या आना चाहिए, -3x। लेकिन मैंने आपको एक और कंडीशन बताई थी कि उन्हीं टर्म्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए जो आउटर मोस्ट टर्म्स हैं, जो आउटर मोस्ट टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल। आउटर मोस्ट टर्म कौन सी है, 9x² एंड -2। मैंने क्या बोला था, साइन आर ऑलवेज टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो अगर मैं 9x² को -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -18x², यस और नो। यानी कि कुल मिला के वो 2 फैक्टर्स जो हम फाइंड कर रहे हैं -3x के लिए, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, -18x² के, और सम और डिफरेंस तो किसके इक्वल होना चाहिए, -3x के। अब पहले जो एग्जांपल लिया था थोड़ा इजी था, इसमें हमें क्या फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसमें भी फैक्टर्स फाइंड करने थे। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, इसमें x² का कोफिशिएंट है, उसमें x² का कोफिशिएंट 1 था, तो ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आपका स्टेप भी बढ़ जाएगा, टाइम भी बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो बेटा, आपके पास प्रोडक्ट करने के बाद नंबर क्या, एलिमेंट टर्म क्या आ रही है, -18x², टर्म क्या आ रही है, -18x²। थोड़े टाइम के लिए आप ये माइनस साइन भूल जाओ और x² भूल जाओ, तो आप पे नंबर क्या आता है, 18, ठीक है ना, नंबर क्या आता है, 18। इन स्टेप्स को प्लीज़ माइंड में लेके चलना।
पहले क्या करना है, दोनों आउटर मोस्ट टर्म का प्रोडक्ट लिख लो। अब उस प्रोडक्ट का अलग से नंबर लिख लो, नंबर क्या है 18। और बेटा हमें पता है इस 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, अगर मैं इनके फैक्टर्स फाइंड करता हूँ 2 इन 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। सो इस 18 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, ये आपके 4 पॉसिबल फैक्टर्स आ गए। अब हम इन फैक्टर्स का यूज़ करके दो नंबर बनाएंगे जिनका सम क्या होगा -3। तो वो कैसे बन सकते हैं, देखो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। लेकिन मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का सम करता हूँ तो 9 आएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए -3। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, -6 + 3, क्योंकि -6 + 3 क्या होता है -3। और हमें x भी चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -6x + 3x। अब देखो -6x + 3x का सम तो क्या आएगा -3x, लेकिन इनका प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, 6 3 ज़ा 18x²। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आप क्या करोगे, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन की आउटर मोस्ट टर्म लिख लो। आउटर मोस्ट में टर्म क्या है, पहली टर्म क्या है 9x², लास्ट टर्म क्या है -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ये तो बेसिक है जो अपन 7th 8th में भी करते हैं। ठीक है, फिर हमने नंबर को अलग लिख लिया, उन नंबर का हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 3 3 1, 4 फैक्टर्स आए। कभी कभी आपके 10 फैक्टर भी आएंगे, तो उन 10 फैक्टर में से भी हमें 2 एलिमेंट्स निकालने हैं, तो वो आपको थोड़ी मेहनत बढ़ती चली जाएगी, ऐसे मार्किंग स्कीम भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ 4 हैं, तो देखो 3 इंटू 2 क्या होता है 6, 3 इंटू 1 क्या होता है 3। लेकिन आप कहोगे सर 6 + 3 तो 9 होता है, मुझे क्या चाहिए -3। तो मैंने साइन चेंज कर दिए, 6 के साथ लगा दिया माइनस, 3 के साथ लगा दिया प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आएगा, 6 के साथ बड़ा साइन है तो -3 हो जाएगा। देखो ना, -6x + 3x क्या होता है -3x। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 9x² -6x + 3x -2 = 0। आई होप ये पहली इक्वेशन तो आपको क्लियर हो गई होगी ना। पहला जो आपका स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो अगेन हम ये 2 टर्म्स बन गई और ये 2 टर्म बन गई। पहली 2 टर्म में कॉमन लेंगे, देखो 9 और 6 हैं। 9 और 6 हमें पता है दोनों के दोनों मल्टीपल हैं 3 के, तो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, फिर x² और x है, तो यहाँ 2x है, यहाँ 1x है, तो 1x भी हम कॉमन ले सकते हैं। फिर हम ब्रैकेट में वो बाकी टर्म्स लिख देंगे जो कि कॉमन नहीं आई हैं। तो इस 9 में से 3 आया है कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे 3 बचा, क्योंकि 3 इंटू 3 क्या होता है 9। बोर्ड मास में हम ऐसे तो ब्रैकेट को ओपन कर दें, 3 इंटू 3 9। अब 1x कॉमन आया तो 1x हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस साइन, और 6 में से 3 हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2, 3 2 ज़ा 6। अब देखो इधर लास्ट की 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो हम क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा 3x - 2 = 0। मैंने आपको बताया था कैसे चेक करेंगे हम सही कर रहे नहीं कर रहे हैं, दोनों की दोनों लीनियर जो इक्वेशंस बनेंगी ब्रैकेट के अंदर वो सेम बनेंगी। अब इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन ले लो, क्या आएगा कॉमन 3x - 2, और दूसरी ब्रैकेट में सारी अनकॉमन टर्म वो क्या हो जाएंगी 3x + 1 = 0। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को = 0 कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस वाली ब्रैकेट को = 0 कर देंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे करेंगे इतना आप लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे चलता हूँ। क्या करेंगे नेक्स्ट लाइन में अपन, वेट, यस अपना स्टेप क्या आया था 3x - 2, 3x + 1 = 0। तो मैंने क्या बोला, एक बार 3x - 2 को = 0 कर दो, 3x - 2 = 0, और एक बार 3x + 1 को = 0 कर दो, 3x + 1 = 0। ये हो जाएगा 3x -2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। ये 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इधर क्या आएगा 3x + 1 इधर चला जाएगा तो -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। ये 3 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x की मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और ये आपकी बीटा की वैल्यू आ गई। तो अल्फ़ा की वैल्यू 2/3, बीटा की वैल्यू -1/3। तो 2 पॉसिबल फैक्टर्स हो गए, 2 पॉसिबल रूट्स हो गए, 2/3 -1/3। और इनको 1 बाय 1 अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बनेंगी, विच इज़ = 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So this is all about the factorization method to find the roots of a quadratic equation। तो आप NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करना आज, ठीक है, और फिर कल हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक मेथड टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। अच्छा क्लास, इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों मेथड में से आप कोई सा भी अप्लाई करो, आंसर कभी चेंज नहीं होता है, आंसर तो सेम ही आएगा, बस मेथड थोड़े अलग हैं। किसी साइंटिस्ट ने ये मेथड दिया है, किसी साइंटिस्ट ने वो मेथड दिया है, और एग्जाम में आपको एग्जामिनर हमेशा मेंशन करता है बाय विच मेथड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो मेंशन नहीं करता है देन दिस इज़ योर चॉइस कि आप कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकते हो टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आप बाउंड नहीं हो, लेकिन एग्जामिनर ऐसा करता नहीं है, वो हमेशा आपको बाउंड करेगा, वो आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा with given by the condition. So I hope this particular things whatever we have done in today's class, whatever we have learned in today's class, the basic concept of the quadratic equation is clear to all of you. Still if you have a doubt, then you can call me on my number 9571059923 anytime, or you can WhatsApp me your question, I will give you the solution. Thank you so much. Thank you class.